اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آغا بابر کی کہانی سروے۔ آڑی ترچھی سنگلاخ سلیں یوں اوپر تلے بلند ہوتی چلی گئی تھی جیسے کسی فیل پاک جن کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہوں۔ جب سلوں پر گھوڑا پاؤں رکھ کر اوپر چڑھتا تو معلوم ہوتا اب اس کا پاؤں نہیں پھسلا تو اگلے قدم پر ضرور پھسلے گا، اور پھر جب ڈھلوان شروع ہوتی تو معلوم ہونے لگتا کہ گھوڑے کی پنڈلی لچک کھا جائے گی اور گھوڑا اور سوار دونوں گیند کی طرح لڑک کر کھائی میں جا گریں گے یا کسی کھوہ میں اٹک جائیں گے۔ ایسے مقامات پر علی شیر گھوڑے کے دہانے کی راس پکڑ لیتا، صالح کو بڑا سہارا ہو جاتا اور اس پرستانی علاقے کی ہیبت ناکی ایک دم طلسماتی بن جاتی۔ پھر نیچے کھڈ میں پڑے گھوڑے کی لاش کی بو سونگھ کر گھوڑا بدک کر ہنہناتا تو یہ طلسماتی دھوپ ایک دم سے خوف کی چھاؤں میں پھسل جاتی۔ دشوار گزار اور پرپیچ راستے کوئی 2.5 مہینے سے اس کے کندھے پر بے طرح سوار تھے۔ سروے کا کام ہی ایسا تھا، کبھی ترائی میں کبھی پہاڑ کی چوٹی پر، کیسے کیسے پیچ و خم، کیسے کیسے نشیب، کیا کیا فراز، کھڈ کھائیاں، پرہول راستے، ہر جگہ ہمت کا امتحان تھا۔ 50 برس پہلے کسی انگریز بچے نے اس دور دراز علاقے کا سروے کیا تھا، پھر کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ اب صالح کے نام یہ قرعہ فال پڑا تھا اور وہ جی میں خوش تھا کہ یہ اہم قومی کام اس کے ہاتھوں انجام پائے گا۔ اس کام کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے میں خطرے اور صعوبتیں درپیش تھیں۔ شنیدہ اور دیدہ میں 1000 فرسنگ کا فاصلہ تھا۔ خیالی باتوں اور پرپیش پہاڑی سفر کی اصل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہر قدم اور ہر جگہ پر حوصلے کی آزمائش تھی، ہمت کا امتحان تھا۔ سنگلاخ چٹانیں منہ کھولے کھانے کو آ رہی تھیں، نرم اور بھربھری مٹی، سفید سفید برف کے تودے، پھسلنی گھاٹیاں، کھائیاں، تیز ہوائیں اور اداس راتیں جاڑے کی چاندنی یا غریب کی جوانی بن کر نس نس میں بس گھولتی تھیں۔ دیو ہیکل سربلند پہاڑوں میں تھکا ہارا بیٹھا صالح فطرت کی کشادگی اور وسعت کی بے قرانی میں ایک معمولی سا نقطۂ بے مقصد و مدعے لا حاصل دکھائی دیتا تھا۔ یہ مسلسل مہماتی کام کرتے کرتے اب اس کے اعصاب بوجھل ہونے لگے تھے اور کھردرے پتھروں سے لگ لگ کر اس کے ہاتھ بھی سخت اور کھردرے ہو گئے تھے۔ دماغ میں کام کی لگن کے جالے تنتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہ حیران ہونے لگتا کہ انسان ان 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھے اور اس ایک دماغ سے کیا کیا سوچے۔ وہ زمین کی تہوں کا سروے کرے کہ آسمان کی وسعتوں کا، کہ ان میں بسنے والی مخلوق کا۔ ایک وہ اپنے آپ کو ڈاک بنگلے میں کرسی پر لیٹا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کی نگاہ جدھر اٹھتی تناور درختوں کی قطاریں اور پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ دکھائی دیتے۔ شاداب وادیوں کے ایک خطے میں بڑے زمیندار کا گھر نظر آتا جس کے ہونہار لڑکے نے 1 مہینے کے اندر ہی اپنی دلہن کو طلاق دے کر اپنے ڈرائیور کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہوا۔ مرد کس عفریت کا جنا ہوا ہے، اس کا خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے، اسے کس حقیقت کی تلاش ہے۔ پھر اس نے اپنا کام جان بوجھ کر لمبا کر ڈالا، محض اس دلہن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جس کو بمشکل 20 دن سہاگ کے میسر آئے تھے، اور پھر پھلوں سے لدا پھندا پیڑ اپنے باپ کی انگنائی میں تنہائی کی سرد ہوائیں سہنے کو رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ کیلے کے چھلکے سے پھسل کر گرا، اٹھا تو سامنے زمیندار کی بہو اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ وقت اپنی ساری اہمیت سے دستبردار ہو چکا ہے۔ 2 جھیلوں میں نیلا پانی چھلک رہا ہے، لمبے لمبے سیاہ بالوں میں سرخ و سفید چہرے سے خون ٹپک رہا تھا۔ 20 دن کے بعد چھوڑ دیا؟ جی ہاں، مگر کیوں؟ چوکیدار نے سوچا، تأمل کیا۔ صالح نے پھر اصرار کرتے ہوئے پوچھا، مگر کیوں؟ آخر کوئی وجہ؟ کیا لڑکی میں عیب تھا؟ چوکیدار داناؤں کے لہجے میں بولا، تھا، مگر اس پر لڑکی کو اختیار نہ تھا۔ صالح ہمتن گوش ہو گیا، وہ کیا؟ لڑکے نے اپنے چچا سے بے محابہ کہہ ڈالا، دلہن کو دیکھ کر میرے جذبات میں کوئی تحریک نہیں ہوئی، مجھے اس کے بدن سے اپنی بہنوں کی سی بو آتی ہے۔ آج بھی اور کل بھی میرا نباہ نہ ہوگا، میری شادی اس سے کیجیے جس کو دیکھ کر میرے جذبات میں تحریک پیدا ہو۔ پھر اس نے ڈرائیور کی بیوی سے شادی کر لی۔ صالح بولا، کیا اسے دیکھنا ممکن ہے؟ اوہو، سخت پردہ ہے۔
ये पर्दा भी हुस्न और रानाई का कैसा पुरस्कार गिलाफ है कि उसकी तहों में कैसे कैसे राज हाय सरबस्ता मुंह छुपाए पड़े रोया करते हैं। छोटी छोटी मछलियां सब्ज रंग झील में एक दूसरे के आगे पीछे भागती हैं। शिकारी कुंडी फेंकता है, पानी में बेखरोश सी लहरें बढ़ती और सिमटती हैं और आंखें मूंदने लगती हैं। जब आंखें खुली तो घोड़े पर जीन कसी जा चुकी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे किलाहाय कोह में घिरे हुए इलाके में सुबह का गुबार छाया हुआ था। कानों के साथ खामोशी बज रही थी, हवा में खुनकी थी। परिंदों का चहकारा न बोलता था न चालता। उसका महज एहसास था कि अभी ये सोई सोई फिजा इस चहकारे से आंखें मल कर उठ बैठेगी। टिम टिम टू करता एक परिंदा सर पर से गुजर गया। अली शेर ने थर्मस को गले में डालकर घोड़े के दहाने को खींचा। पथरीले रास्ते पर घोड़े की सुम की आवाज ने जामिद और संगीन फिजा में आज का पहला इर्तियाश पैदा किया। जब पाव फटी तो घोड़ा आड़ी तिरछी सिलों और संगलाख चट्टानों पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। यहाँ की हर शय सख्त और खुरदुरी थी, मगर फिर भी उससे मजबूती और कुव्वत का वकार झलकता था। जिधर देखो भूतों जैसे पहाड़ मुंह उठाए खड़े थे। सालेह के आसाब में खिंचाव आने लगा। घोड़ा एकदम जो बिदक कर हिनहिनाया तो अली शेर ने झट से उसके दहाने की रास पकड़ ली और घोड़े को पुचकारने लगा। फिर दुश्वार गुजार रास्ते पर सनसनी खेज सीधी चढ़ाई शुरू हो गई। सालेह घबरा कर घोड़े से नीचे उतर आया। फिर उतराई आ गई, फिर बंजर पहाड़, फिर नागाह एक तंग दर्रा, फिर नदी हाइल, फिर पत्थरों की सिलें, फिर खौफनाक मोड़ के बाद पुरखतर पगडंडी खम खाकर एक ऐसी जगह पर आन निकली कि बुलंदो बाला पहाड़ों का मुहीब सिलसिला पीछे रह गया। नीचे हरियावल के टुकड़े में छुपी हुई एक खूबसूरत बस्ती दिखाई देने लगी। एक जानिब तमाम दरख्तों, फूलों और पौधों में आग सी लगी हुई थी, दूसरी जानिब छांव की नीम तारीकी छाई हुई थी, जिससे इस मंजर में खुशनुमा तजाद पैदा हो गया था। फिर वो हरे भरे दरख्तों में से गुजरते एक शादाब वादी में आ निकले, जहां उनके साथ साथ पहाड़ों की पिघली हुई बर्फ का पानी दौड़ रहा था। ठोस खूबसूरती हदे नजर तक फैलती चली गई थी। फिर उस बालू में पांव धंसने लगे, जिसके जर्रों में दूर नजदीक दोपहर की रोशनी से बिलोर की सी चमक पैदा होती चली गई थी। फिर वो एक चश्मे पर रुक गए। अली शेर ने घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया, फिर नाश्ता दान खोला, कंधे से लटकी थर्मस फ्लास्क को उतारा। सालेह ने खाना खाने के बाद चाय पी, जरा सुस्ताए और फिर चल पड़े। अब रास्ते में उन्हें मुड़े किनारे वाली नमदे की टोपियां पहनने वाले चरवाहे मिलने लगे। फिर पहाड़ों के बीच में पतले पतले जमीनी किते दिखाई देने लगे, जिनके पस मंजर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों में ऐसी नुमाया खूबसूरती नजर आई जो बयान से बाहर थी। सालेह सोचने लगा, ये बुलंदियां किस तरह अपने बासियों में जोशो खरोश और वलवला पैदा कर देती हैं और इंसान सर धड़ की बाजी लगाकर उन्हें सर करने को निकल आया है। दोपहर कभी की ढल चुकी थी। जब वो बस्ती के करीब पहुंचे तो हल्का हल्का अंधेरा हो चला था। सामान लाने वाले घोड़ों का सामान उतार उन्हें जीन समेत चौक में आहिस्ता आहिस्ता चला फिरा रहे थे कि उनके पट्टे और आसाब एकदम ठंडे न हो जाएं। डाक बंगला अभी 2 मील आगे था। सालेह की कमर घोड़े पर बैठे बैठे अकड़ गई थी। उसका जी चाहता था कि वो यहीं चौक में घोड़े से उतर बैठे और मूंज की खाट पर लेटकर आसमान को तकता तकता आंखें बंद कर ले। 2 वक्तों के मिलाप की उदासी से उसकी जिस्मानी तकान दो चंद हो रही थी। झींगर की आवाज थकी थकी फिजा की अफसुर्दगी और तन्हाई को और शदीद कर रही थी। पहाड़ी के टीले पर डाक बंगले की इमारत जो नीचे से धुंधली धुंधली दिखाई देती थी, अंधेरा बढ़ जाने के सबब आसेब जदा मकान या जादूगरनी की कुटिया मालूम होने लगी। इस खामोशी में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर घोड़ा ठुनक गया। सालेह के आसाब जो झींगर की आवाज के मुतहम्मिल न थे, कुत्ते की गरजदार आवाज सुनकर और बदमजा हो गए। वो घोड़े से उतर आया और टीले की सीधी चढ़ाई पैदल चढ़ने लगा। जब वो डाक बंगले के अहाते में पहुंचा तो उसने देखा एक कमरे की खिड़की में से गैस की तेज तेज रोशनी निकल रही थी। बरामदे के कोने में बड़े कद का अल्सेशियन कुत्ता जंजीर से बंधा था, जो अजनबियों की बू पाकर जोर जोर से भौंक रहा था। अली शेर ने बावर्ची खाने में जाकर चौकीदार को सालेह के आने की खबर दी और खुद घोड़ा बांधकर चौकीदार के साथ कमरा खुलवाने के लिए चल दिया। ठंडी हवा से सालेह के हाथ सुन हो रहे थे।
वो अपना एक हाथ दूसरे से रगड़ रहा था कि चौकीदार ने आकर सलाम किया और बड़ी गर्मजोशी से कमरे का ताला खोलने लगा। इतने में एक और छोकरे ने आकर सलाम किया और फिर एल्सेशियन को पुचकार पुचकार कर चुप कराने लगा। सालेह बाहर खड़ा उस खिड़की की तरफ देखता रहा जिसके शीशों में से गैस की रोशनी छन छन कर बाहर निकल रही थी। कमरे में किसी किस्म की कोई हरकत न हुई, सिर्फ रोशनी थी जो शीशों में से झांक रही थी। सालेह का जी चाहा कि कमरे में कोई हरकत हो, कोई उठे, उठकर खिड़की तक आए, आकर बाहर देखे, झांके, कौन आया है, कहां से आया है, क्यों आया है। ये जमूद किसी तरह टूटे जो उसके आसाब को कई दिनों कई हफ्तों से जकड़ता चला आ रहा था। चौकीदार ने मेज पर पड़े हांडे वाले लैंप को जला दिया। मुर्दा सी रोशनी कमरे की तारीकी को बाहर धकेलने लगी। सालेह अंदर आकर आराम कुर्सी पर गिर पड़ा और चौकीदार से बोला, हाथ मुंह धोने को गर्म पानी है? अभी किए देता हूं सरकार। सालेह दाएं बाएं देखकर बोला, ये कमरा तो कोई अच्छा नहीं। जी बस 2 कमरे हैं, दूसरे में कौन उतरा है? कोई कराची से आए हैं, बेगम साहब भी साथ हैं। इस वक्त कहाँ हैं? उनके नौकर को भेजता हूं, मैं आपके लिए पानी गर्म करूं। उसी छोकरे ने जो कुत्ते को चुप करा रहा था आकर दोबारा सलाम किया और बोला, आपने मुझे बुलाया है? तुम कराची से किन साहब के साथ आए हो? क्या काम करते हो? कराची के बिजनेसमैन हैं, मैं उनका कुक हूं। दोनों साहब और बेगम तफरी के लिए अपनी जीप में आए हैं। कितने दिन से? यहाँ 10 दिन हो गए। पीछे भी पड़ाव करते आए। सुबह बाबू सर गए हैं, बोले शाम को आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। सुना है कोई पुल टूट गया है, शायद आज रात को आ जाएं या कल। जनाब किधर से आए हैं? हम दूसरी तरफ से आए हैं। इतने में अली शेर चाय की प्याली उठाए दाखिल हुआ जिसमें से गर्म गर्म भाप उठ रही थी। थर्मस में जो प्याली बची थी गर्म करके ले आया हूं, अगर और चाहिए तो नई बना कर ले आऊं। नहीं नहीं, काफी है। सालेह ने चाय की प्याली अपने साथ ही आराम कुर्सी के बाजू पर रख ली। अली शेर और कुक अंधेरे में गायब हो गए। सालेह को चाय की गर्म गर्म चुस्की इतनी अच्छी लगी कि वो उठकर बैठ गया। उसने प्याली को पिरच पर से उठाकर दोनों हाथों की ओक में इस तरह रख लिया जैसे कभी रोमन्स में शराब का प्याला दोनों हाथ में थाम लेने का रिवाज होता था। उसके ठंडे ठंडे हाथों की खुरदुरी खाल को प्याली की गर्म गर्म सतह अच्छी लगने लगी। वो लेटा लेटा वक्फों के साथ साथ गर्म गर्म घूंट हलक के नीचे उतारने लगा। फिर सिगरेट सुलगाकर आराम कुर्सी पर नीमदराज हो गया। उसके आज़ा थके हुए थे। घोड़े पर सीधा बैठे रहने से कमर अकड़ गई थी। उसने आंखें मीच ली, मगर उसे फिर भी निस्वारी रंग के ऊंचे भूरे पहाड़ों और उन पर लहराते हुए पुरपेच पहाड़ी रास्तों के सिवा कुछ दिखाई न दिया। अली शेर ने आकर बताया कि सामान वाला टट्टू भी आन पहुंचा, जिसे मुख्तसर मगर ज्यादा मुश्किल रास्ते से आना था। गर्म पानी तैयार था, मगर उसे किस गुस्ल खाने में रखा जाए, क्योंकि गुस्ल खाना एक है जिस पर कराची वालों का कब्जा है। इतने में छोकरे ने आकर कहा कि उसने गुस्ल खाने में लैंप जलाकर रख दिया है, वहां मुंह हाथ धो लीजिए। पर्दा हटी खिड़की के पास से गुजरते हुए सालेह की अंदर नजर पड़ी। पेट्रोमैक्स रोशन था। कमरा यूं करीने से सजा था जैसे रेस्ट हाउस या डाक बंगले का कमरा न हो, बल्कि किसी का पक्का मुस्तकिल रिहाइश का कमरा हो। हर चीज में सफरीपन या चलचलाव का उनसुर न था, बल्कि यूं जैसे घर का जमा हुआ माहौल हो। छोटी तिपाहियों पर कढ़े हुए मेजपोश थे जिन पर तस्वीरदार रिसाले पड़े थे। पास ट्रांसिस्टर धरा था। दीवार पर एक खूंटी से हॉट वाटर बोतल लटक रही थी। दूसरी खूंटी से हैंगर पर मॉर्निंग गाउन लटका हुआ था। कार्निस पर चौड़े मुंह की थर्मस पड़ी थी। मेज पर 4 खाना कपड़ा बिछाकर खाने की प्लेटें चुनी थी। एक एक नैपकिन पड़ा था। कमरे का इस कदर रख रखाव देखकर सालेह के जज्बात अजब तरह से गड़मड़ होने लगे। वो चौकीदार को गर्म पानी का पतीला उठाए गुस्ल खाने से बाहर खड़ा देखकर बोला, अंदर जाकर रख दो ना। मुझे इजाजत नहीं, आप चलें सरकार। जग में डाल दो। चौकीदार गर्म पानी जग में डालकर बाहर चला गया। सालेह दरवाजे का किवाड़ भेड़ कर मुड़ा तो उसकी निगाह पुराने डिजाइन के फ्रेम वाले आईने पर पड़ी जो पॉलिश से थुपी पुरानी मेज पर धरा था। आईने के फ्रेम की हत्ती से कितान के 2 कूजे लटक रहे थे। आईने के सामने नायलॉन का 2 बालिश टुकड़ा बिछा था जिस पर नेल पॉलिश की शीशियां, पाउडर के डब्बे, मुख्तलिफ शेड की लिपस्टिकें और यूडिक्लोन की बोतल सजी थी, जिसके डब्बे पर मुख्तसर बिकनी पहने बेरहना औरत की तस्वीर थी। ताकचे में विम का डब्बा और सर्फ के 2 पैकेट पड़े थे।
दूसरे ताक में बूट चमकाने वाला कपड़ा बिछाकर उस पर बूट पॉलिश और ब्रश धरे थे। साथ ही सुई धागे का खलीता पड़ा था। दीवार के साथ 2 टॉवल स्टैंड थे। जो हाथ मुंह धोने वाली मेज के करीब था, उस पर तौलिया रखा था। दूसरे पर उतरे हुए कपड़े धरे थे। लैंप की धीमी धीमी रोशनी का हर शय पर एक सहर आलूद और पुरस्रार गिलाफ चढ़ा हुआ था। मगर ये पुरस्रार फिजा और अपनी अपनी जगह पर जामिद पड़ी हुई चीजें सालेह के आसाब को राहत पहुंचाने लगी। उसने उतरन के कपड़ों को एक एक करके देखा। ये जनाना कपड़े थे। रेशमी कमीज से खट्टी मीठी बास आ रही थी। उसे हटाने की बजाय अपने नाक पर रख लिया। यह औरत के बदन की बू थी जो एनेस्थीसिया की तरह उसके रुएं रुएं में उतर गई। वो अंदर से गुस्ल खाना बंद करके एक एक कपड़े को सूंघने लगा। किसी में बदन की बू कम थी, यूडिक्लोन की ज्यादा। किसी में यूडिक्लोन की कम, बदन की ज्यादा। इस बू ने जैसे उसके थके हुए आसाब को अपनी आगोश राहत में ले लिया। उसने कमीज दोनों हाथों में लटका कर देखी, फिर एहतियात से उसे फर्श पर बिछा दिया। फिर स्टैंड से शलवार उठाकर कमीज के नीचे इस अंदाज से रखी जैसे नुमाइश का कोई शोकेस सजा रहा हो। फिर उसके हाथ में डोरी आई जिससे 2 गोल गोल कूजे मुंसलिक थे, जिनको वो कमीज के अंदर बाजुओं के दरमियान सजाकर पहनने वाली के कद और जिस्म का सर्वे करने लगा। एकदम उसे वो टैक्सी याद आई जिसके ड्राइवर ने चमकीले बम्पर पर काले हरूफ में लिख छोड़ा था, जल परी तलाश। उस वक्त उसकी समझ में खाक ना आया जल परी क्या और तलाश क्या, मगर अब उसे यह महसूस होने लगा जैसे जल परी उसे मिल गई, जो ना बोल सकती थी ना उसकी बात समझ सकती थी। एक केंचली जिससे गायब शुदा स्पेनी का हुस्न और जादू जरूर आया था, मगर ये खाली हियोला जिससे जज्बे की वाबस्तगी जिंदगी की हरारत बनकर सालेह के सीने को गुदगुदाहटों से भर रही थी, लैंप की मरी मरी रोशनी में जिंदगी की ताबिंदा अलामत बन रहा था। एक ठोस खूबसूरती थी जो कमरे में चारों तरफ फैल गई थी। ये ख्याल कि वो इन पियालों में समेटी हुई बू को भी चुरा ले, चोर की तरह नकब लगाकर उसके जहन पर दस्तक देने लगा। झट उसने कपड़े उठाकर स्टैंड पर रखे और कूजों पर अपनी नाक रखकर अंदर को लंबी लंबी सांसें खींचने लगा, जिनसे उसकी जबान के रेशों पर निस्वानी बदन की मीठी मीठी बू लोट पोट होती चली गई। उसने एक बड़ा सा घूंट भरा और साथ ही उसका खुरदुरा हाथ आईने की हत्थी पर जा पड़ा, जहां 2 कूजे और लटक रहे थे, मगर उनमें बदन की बू रची बसी न थी, परफ्यूम की बू थी। मगर उनकी नोकों में नन्हे मुन्ने रेजे से रुई के फाये फंसे थे, जिनको उसने निकाल कर सूंघा। परफ्यूम की सारी लपट उसमें छुपी थी, जिन्हें उसने फिर उसी तरह कोनों में उड़स दिया। हुस्न रानाई के इन पुरस्रार कटोरों में औरत की सारी ताकत सिमट आई थी। नफीस नफीस बुनती और गोल गोल बखिया ठोस और ताकतवर चोटी की तरफ इस तरह जा रहा था जैसे पहाड़ की बुलंदी की तरफ पेच दर पेच राहें निकलती हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इन पियालों के नीचे 2 उजले उजले ग्लेशियर थे जो पिघल कर गायब हो गए या अपनी जगह से खिसकते खिसकते समुंदर से जा मिले। 2 ग्लेशियरों को मिलाने वाले पुल के टांके टूट चुके थे। धीमी धीमी रोशनी की पुरस्रारियत और कमरे के परिस्तानी माहौल में जहां हर शय नर्म और रेशमी थी, उसकी जहनी कोफ्त, जिस्मानी तकान और आसाबी खिंचाव की तमाम कैफियतें दूर होने लगी। वो लैंप की रोशनी में अपने खुरदुरे हाथों में सुई तागा लिए ग्लेशियरों को मिलाने वाले पुल पर इकहरे और बारीक टांकों की सीमेंट इस दिलजमई से लगाने लगा जैसे ये जादूगरी के कूजे उसके अपने थे, उसका अपना कमरा था जहां वक्त की कोई कैद न थी। उसने पानी के जग की तरफ देखा जिससे भाप निकलनी बंद हो चुकी थी। उसने धागे का सिरा फिर वहीं से उठा लिया जहां छोड़ा था। अनदेखे निस्वानी बदन की मीठी मीठी बू फिर उसके आसाब पर बरसने लगी। उसका रुआं रुआं सदफ की तरह अपना मुंह खोलता चला गया, जिसमें बू की रुकती मचलती लहरें और नन्ही मुन्नी बूंदें फुआर बनकर बरसती चली गईं। चोर चोर। हाथ मुंह धोने से पहले ही उसने कटोरों को अपनी जेब में डाल लिया। नर्म नर्म तौलिए से हाथ मुंह पोंछ कर भी उसके जज्बात का खुरदुरापन दूर न हुआ। उसने बाहर निकलने से पहले फिर से खट्टी मीठी रेशमी कमीज का गुच्छा हाथ में उठाया, सूंघा, फिर उसे अपने चेहरे पर इस तरह मला जैसे वो पाउडर लगाने वाला पफ था। सालेह अपने कमरे में आया तो अली शेर बिस्तर लगा चुका था और सूटकेस में से शब ख्वाबी के कपड़े निकाल रहा था। सालेह खाना खाते हुए बोला, ये मुर्गी का हलीम कहाँ से आया? अली शेर ने जवाब दिया, साथ वालों के नौकर ने मालिक के लिए पकाया था, वो नहीं आए, उसने एक रकाबी आपको भिजवा दी।
جب وہ دسترخوان بڑھانے لگا تو صالح نے پوچھا، صبح تڑکے تڑکے روانہ ہوں یا ناشتہ کر کے؟ جیسے آپ کہیں، مگر اگلا راستہ بھی کٹھن ہے، جلدی روانہ ہوں گے تو جلدی پہنچیں گے۔ یوں ہی صحیح۔ صبح صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلا خیال اس کے دماغ میں یہ آیا، واللہ عالم 7 والے رات آئے یا نہیں۔ وہ تیار ہو کر جب باہر صحن میں آیا تو فضا میں ہر طرف اجالے کی ایک سرمدی لکیر پھیل گئی تھی، مگر کمرہ تاریک تھا۔ برآمدے میں بندھا السیشن کونے میں بیٹھا تھا۔ راتب کی پلیٹ اور چچوڑی ہوئی ہڈیاں اس کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں۔ رات بارش کتنی ہوئی اور کب ہوئی اسے کچھ علم نہ تھا۔ زمین بارش کا پانی پی کر گہری سیاہ نظر آ رہی تھی۔ مطلع اس طرح صاف تھا کہ بدلی کا ایک ٹکڑا بھی کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ناشتے پر جب اس کے پوچھنے پر علی شیر نے بتایا کہ 7 والے ابھی تک نہیں آئے تو اس نے اب دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رکاب میں پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھ بیٹھا۔ جب وہ ٹیلے سے اتر کر بستی کے قریب پہنچے تو دھوپ کے روشن قطلے سیاہ پڑی چٹانوں پر بچھنے لگے، پھر سنہری روپہلی جھلملاہٹ چاروں طرف پھیلنے لگی۔ اس کا ہاتھ پتلون کی جیب میں چلا گیا، جہاں کٹوروں کی ڈوریوں کو اس نے محسوس کیا۔ علی شیر آگے آگے جا رہا تھا۔ صالح نے اپنی ناک کٹورے میں اس طرح رکھ دی جیسے کلوروفارم سونگنے لگا ہو، پھر وہی میٹھی میٹھی بو اس کے روئیں روئیں میں اتر گئی۔ اس نے مشک کے اس نافے کو پھر جیب میں چھپا لیا اور سوچنے لگا، رات کو جذبات کی کن پرچھائیوں نے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ کیسے کیسے پیچ و خم اور کیسے کیسے نشیب و فراز میں کھو گیا تھا۔ لا حول ولا، کیسی کیسی چیزیں جذبات کو تحریک دیتی ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نئی دلہن کو چھوڑ کر ڈرائیور کی بیوی کو بسانے والا چترالی نوجوان پھرنے لگا۔ کب پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہوا تھا، کب وہ سرسبز و شاداب درختوں کے اس کنج کے پاس سے گزرنے لگا تھا، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اس کے دھیان میں تو رات والا اتر آیا تھا جو اس کی روح کا بوجھ بن رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر کہ رات اس کے باطن کے کس سرچشمہ نہا سے نفس کی برات چڑھائی تھی، اسے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ فطرت کی پاکیزہ اور منزہ فضاؤں میں سانس لینے والا صالح خوب سے باطن کی کن تاریک راہوں پر چل پڑا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی جیب میں رکھی سوغات کو نکال کر باہر پھینک دے۔ اس نے جیب میں 2 بار ہاتھ ڈالا، مگر ایک اور اتنی ہی مضبوط طاقت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ درختوں کے کنج کو آہستہ خرام ندیوں کا پانی گھیرے ہوئے تھا۔ اسے نسواری بھورے اور سرسبز پہاڑوں کی چوٹیاں گھور رہی تھیں، پرپیچ کوہستانی راستے اکسا رہے تھے۔ اب اس کی روح کے بوجھل پن سے اس کے آسودہ اور مطمئن اعصاب زچ ہونے لگے تھے۔ گھوڑے نے دوسری بار جھٹکا دے کر اپنی گردن جھکائی اور زمین پر پڑی لید کو سونگھنے لگا۔ علی شیر جلدی جلدی آگے چل رہا تھا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی۔ بابو سر کے درے کی طرف سے بادل اٹھنے لگے تھے اور فضا کی خنکی نے دھوپ کی تمازت کو مات دے کر پیچھے دھکیل دیا تھا۔ صالح نے زور سے لگام کھینچ کر ایڑ لگائی۔ گھوڑا ایک دم ہنہنانے لگا۔ علی شیر گھوڑے کو پچکار کر بولا، صاحب اس کی لگام کھینچ کر رکھیے۔ رکھتا تو ہوں مگر یہ لگام کو جھٹکا دے کر کھینچ لیتا ہے، چلتا چلتا رک جاتا ہے اور لید کو سونگنے لگتا ہے۔ یہ اسی طرح کرے گا۔ کیوں؟ ہر گھوڑا کرتا ہے۔ کیا؟ سونگ کر مادہ کا اندازہ لگاتا ہے۔ ہاتھ میں تھامی پتلی شاخ پھر پٹاخ سے علی شیر نے گھوڑے کی ران پر ماری اور بولا، نر گھوڑا ہے نا؟ نہ مارو شیر، اس پر بیٹھا بھی تو نر سوار ہے۔ جی صاحب۔ بابو سر کی طرف سے آنے والے پہاڑی راستے پر گڑگڑاہٹ پیدا کرنے والی ایک جیپ تیزی سے موڑ مڑ گئی، جس میں بیٹھی ہوئی عورت کی محض ایک جھلک دکھائی دی اور صالح نے ایک دم سے چلتے چلتے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔